Very good morning, students, and most welcome in online classes. You know that very well in literature class we touched or we have completed the 4 chapters in Flamingo, and right now it's time to start the chapter number 5, Indigo, written by Louis Fisher. Okay, written by Louis Fisher. Indigo basically is the name of harvest. एक फसल का नाम है, एक खेती है, इसे हम लोग कहते हैं नील की खेती. Okay, harvest of indigo. In this chapter, basically, the writer Louis Fisher speaks about the struggle of Mahatma Gandhi for the poor peasants of Champaran. Okay, students, in this chapter is अध्याय में the writer Louis Fisher discusses about the struggle of Mahatma Gandhi, the struggle of Mahatma Gandhi for the poor peasants of Champaran, and exactly they had to share. The poor peasants of Champaran had to share their crops with the British planters. With the British planters, and the planters means zamindar, landlords, they had to share their crops with the British planters, and this made their lives so miserable and irksome. And these conditions of sharing of crops with the British planters made their life, they stand for the life of peasant, made their lives so miserable and irksome. And apart from all this thing, they had to grow the crop of indigo under certain agreement. Okay, and this all process of agreement made their lives so miserable and irksome also. Okay, it's all about the struggle of Mahatma Gandhi in this chapter. So let's have the chapter, students, chapter number 5. Okay, don't forget that we have written the 10 question of advertisement before. Okay, in composition, 10 question from notices, and after this we'll have in composition basically the invitations. Okay. And you know the lots of topic basically have been deleted, that's why we having literature also simultaneously. So chapter indigo बता दिए क्या इसका मतलब है, आप पढ़ते हैं chapter के बारे में. Let's start the chapter, students. Okay, we are having literature, chapter number 5. Indigo, about the author के बारे में. Louis Fisher was born in Philadelphia. Louis Fisher का जन्म जो है फिलेडेल्फिया में हुआ था. He served as a volunteer in the British Army. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में as a volunteer काम किया था. बिटवीन 1918 एंड 1920 में 1918 और 1920 के बीच में. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट. फिशर ने जो है एज अ जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में अपने भविष्य की शुरुआत की थी. फिशर इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो. और फिशर ने जो अपने भविष्य की शुरुआत जो एक पत्रकार के रूप में की थी, एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और एशियन और यूरोपियन पब्लिकेशन के लिए लिखा. He was also member of the faculty at Princeton University, और वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के मेंबर थे, मतलब वे खुद भी एक लेक्चरर थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, और निम्नलिखित एक एक्सर्प्ट है, निम्नलिखित एक अंश जो है फ्रॉम हिज बुक, उनकी पुस्तक से लिया गया है. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, एक अंश है जो लुईस फिशर की बुक से लिया गया है, और बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड, और इस पुस्तक को जो है माना गया है एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा महात्मा गांधी पर कभी लिखी गई इस पुस्तक को जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस पुस्तक को जो है महात्मा गांधी पर कभी लिखी गई पुस्तकों में से सर्वोत्तम पुस्तकों में से पुस्तक माना गया है. किसके द्वारा? बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा. इट्स ऑल अबाउट द वर्क ऑफ लुईस फिशर. ओके, इट्स ऑल अबाउट द बुक basically the life of Mahatma Gandhi by Louis Fisher. Okay, notice this expression. Here we have some difficult words, students. The 4 difficult words are here, but don't forget that on these are not enough. Nahi hai. We'll have lots of, while we'll have translation. Okay, the first one is urge, the departure, प्रस्थान के लिए आग्रह करना. Harbor a man like me, मेरे जैसे आदमी को शरण देना, हावरी शरण देना. Conflict of duties means कर्तव्यों का संकट. Seek a prop का मतलब सहारा लेना. क्या होता है सहारा लेना? When I first visited Gandhi in 1942, जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से मिला था. When I first visited Gandhi in 1942, जब मैं पहली बार 1942 में महात्मा गांधी से मिला था at his आश्रम, उनके आश्रम पर, in सेवाग्राम में, in सेंट्रल इंडिया में. जब मैं पहली बार महात्मा गांधी से सेंट्रल इंडिया में सेवाग्राम में उनके आश्रम पर मिला था.
He said, उन्होंने मुझे कहा था, I will tell you how it happened. मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा कैसे हुआ, मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा कैसे हुआ. That I decided to urge the departure of the British, कि मैंने ब्रिटिशों से जो है प्रस्थान का आग्रह किया था, कि मैंने ब्रिटिशों से यहाँ से जाने के लिए कहा था. मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा कैसे हुआ. It was in 1917, और ये बात है 1917 की. महात्मा गांधी ने कहा ये बात है 1917 की. And it was in 1917. He had gone to the December 1916 annual convention. He had gone. और महात्मा गांधी जो है गए हुए थे to the December 1916 annual convention, 1916 के वार्षिक अधिवेशन में. कहाँ के? Of the Indian National Congress Party in लखनऊ. लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे महात्मा गांधी. लखनऊ के ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लखनऊ में होने वाले वार्षिक अधिवेशन में गए हुए थे महात्मा गांधी. There were 2301 delegates, और वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे. और वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स का मतलब प्रतिभागी, जो डेलीगेट्स आते हैं, जो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं. और वहाँ पे there were 2301 डेलीगेट्स, और वहाँ पे 2300 डेलीगेट्स आए हुए थे. एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से विजिटर्स, बहुत से आगंतुक आए थे घूमने के लिए, सुनने के लिए महात्मा गांधी को आए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के दौरान, कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने बताया. एंड द मीनिंग ऑफ रिकाउंट इज बताना, और कार्रवाई जब चल रही थी, जब एनुअल कन्वेंशन चल रहा था कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का, ओके, एनुअल कन्वेंशन लखनऊ में, तो जब कार्रवाई चल रही थी, जब कन्वेंशन चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने बताया, अ पीसन केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया था. महात्मा गांधी ने बताया किसान मेरे पास आया था. लुकिंग लाइक एनी अदर पीसन इन इंडिया, भारत में दिखाई देने वाले किसी भी किसान की तरह था. वो एक किसान मेरे पास आया था. महात्मा गांधी ने बताया भारत में दिखाई देने वाले किसी भी किसान की तरह था वो. अ पुअर, एक गरीब था. एंड इमैसिएटेड, और दुबला पतला था. महात्मा गांधी ने कार्रवाई के पीछे बताया, एक किसान मेरे पास आया था, बहुत ही गरीब था, बहुत दुबला पतला था. एंड सेड, और कहा, उसने कहा था मुझसे, कार्रवाई चल रही है, महात्मा गांधी बता रहे उस किसान के बारे में, और उस किसान ने कहा था मुझसे, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. और किसान के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, उसने मुझे बताया था कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. आई एम फ्रॉम चंपारण, उसने मुझे कहा मैं चंपारण से हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट ऑफ, उसने मुझे कहा आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि मैं जो हूँ आपको हमारे ज़िले में ले जाना चाहता हूँ. उस राजकुमार शुक्ला जो गरीब किसान था उसने मुझे कहा. ऐसा कार्रवाई के बीच महात्मा गांधी ने बताया. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और महात्मा गांधी ने इस स्थान के बारे में कभी सुना भी नहीं था. महात्मा गांधी ने इस स्थान के बारे में, जिस जिले में ले जाने की बात वो राजकुमार शुक्ला कर रहा था, उस जिले के बारे में, उस स्थान के बारे में महात्मा गांधी ने कभी सुना भी नहीं था. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और वह जिला जो है वह हिमालय की निचली पहाड़ियों पर था. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के साम्राज्य के पास. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट के तहत, प्राचीन व्यवस्था के तहत, प्राचीन गठबंधन के तहत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स. एंशिएंट अरेंजमेंट के तहत जो चंपारण के जो किसान थे वो शेयरक्रॉपर्स थे. और शेयरक्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार थे. और इस व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के जो किसान थे बेटा, वो क्या थे? वो बटाईदार किसान थे. वो शेयरक्रॉपर्स, क्रॉप को शेयर करने वाले, बटाईदार, बांट कर शेयरिंग करने वाले, वो शेयरक्रॉपर्स थे. क्रॉप को शेयर करने वाले, ओके, वो शेयरक्रॉपर्स थे. एक अरेंजमेंट के तहत, ऐसा अपनी तरफ से नहीं था, एक अरेंजमेंट के तहत था. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उन्हीं किसानों में एक था. और राजकुमार शुक्ला चंपारण के उन गरीब किसानों में से एक शेयरक्रॉपर था. उन शेयरक्रॉपर्स में से एक शेयरक्रॉपर्स था. राजकुमार शुक्ला was one of them. He was illiterate but resolute. He was illiterate, वह अनपढ़ था but resolute, लेकिन अडिग था अपनी बात पर, दृढ़ निश्चयवान था, resolute था, determined था. वह अनपढ़ था लेकिन अपनी बात पर resolute था. He had come to the Congress session, और वह कांग्रेस सेशन में आया था. The whole story, the whole accounts basically selling by Louis Fisher.
लुईस फिशर, सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे आपको। उनकी किताब का एक अंश है इंडिगो, और किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसमें एक अंश है, एक अध्याय है वहाँ पे इंडिगो का, वो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ओके, और वह गरीब किसान जो ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के सेशन में आया था टू कंप्लेन अबाउट द इंजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में कंप्लेन करने के बारे में। बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम के जो इंजस्टिस वहाँ पर है, जो अन्याय वहाँ पर है, बिहार में जमींदारी प्रथा का जो अन्याय वहाँ पर हो रहा था, उसकी शिकायत करने के लिए वह कांग्रेस सेशन में आया था, कांग्रेस के सत्र में आया था, उस वार्षिक अधिवेशन में आया था जो लखनऊ में था 1916 में। एंड समबडी हैड प्रॉबली सेड, और संभवतः किसी ने कहा था राजकुमार शुक्ला से, और संभवतः किसी ने कहा था राजकुमार शुक्ला से, स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। और संभवतः किसी ने कहा था राजकुमार शुक्ला से, गांधी से मिलो, गांधी से बात करो, तुम्हारी समस्या का समाधान महात्मा गांधी करेंगे। और कहा गांधी से मिलो, कहा गांधी से मिलो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट, गांधी ने शुक्ला को बताया था, गांधी ने शुक्ला को बताया था, उसने उसको बताया था, उसने उसको बताया था। ऑल द अकाउंट बेसिकली इज एन एक्सर्प्ट ऑफ द बुक रिटन बाय लुईस फिशर, द राइटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव, एंड somebody had probably said, और संभवतः किसी ने कहा था, स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। और किसी ने कहा था गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, और गांधी ने शुक्ला को बताया था, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उसकी बैठक थी, उनकी बैठक थी। और महात्मा गांधी ने शुक्ला को बताया था उनकी बैठक थी इन कानपुर, कहाँ पर? कानपुर में। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और महात्मा गांधी ने भारत के अन्य हिस्सों में, अदर पार्ट्स में भी जाने का जो कमिटमेंट दे रखा था, वचन दे रखा था। और ये भी बताया महात्मा गांधी ने शुक्ला को कि मैंने भारत के अन्य क्षेत्रों में जाने का कमिटमेंट दे रखा है, वचन दे रखा है, प्रॉमिस कर रखा है। शुक्ला अकम्पेड हिम एवरीवेयर, अकम्पेड का मतलब साथ जाना, और शुक्ला महात्मा गांधी के साथ हर जगह गया। शुक्ला महात्मा गांधी के साथ एनीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद महात्मा गांधी अपने आश्रम में, अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम में आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके पीछे पीछे कहाँ चला गया? आश्रम में भी चला गया। ही वॉज सो बेसिकली इन मिजरेबल कंडीशन, बहुत बुरी हालत में था। दैट्स व्हाई ही केम, इसी वजह से आया था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके पीछे पीछे कहाँ चला गया? आश्रम में चला गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, और कई सप्ताहों तक जो है शुक्ला ने महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा, और कई सप्ताहों तक शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी का संग व साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैट, और कहा फिक्स अ डेट, तारीख फिक्स कीजिए ना, तारीख फिक्स कीजिए ना, चलना है साथ में आपको मेरे, फिक्स अ डेट, तारीख फिक्स कीजिए ना। इम्प्रेस्ड बाय द शेरक्रॉपर्स टेनासिटी, इम्प्रेस्ड बाय द शेरक्रॉपर्स टेनासिटी, और शेरक्रॉपर्स, शेयरक्रॉपर्स, क्रॉपर को शेयर करने वाला, उस बटाईदार किसान की टेनासिटी, उसकी हठधर्मिता, और टेनासिटी का मतलब हठी व्यवहार, हठधर्मिता। इम्प्रेस्ड बाय द शेरक्रॉपर्स टेनासिटी, और उस शेरक्रॉपर्स की टेनासिटी, उस शेरक्रॉपर्स की हठधर्मिता से इंप्रेस होकर के, एंड स्टोरी गांधी से, और उसकी कहानी से इंप्रेस होकर के महात्मा गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा, मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। कलकत्ता, मुझे कलकत्ता जाना, कलकत्ता तो आज हो गया आज तो कोलकाता है, कलकत्ता उस समय कलकत्ता था। ओके, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, महात्मा गांधी ने कहा मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा, और सच एंड सच अ डेट, इस तारीख को, मुझे इस तारीख कलकत्ता जाना पड़ेगा। कम एंड मीट मी, आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मुझे वहाँ से ले जाना, आना मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे ले जाना। महात्मा गांधी हैड लॉट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स एट द टाइम, महात्मा गांधी की बहुत सी अपॉइंटमेंट्स थी उस समय। कहा कि आना मुझे लेके जाना, आना मुझे लेके जाना, मेरी कलकत्ता में इस तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट्स है। फिक्स अ डेट, तारीख फिक्स करो। ओके, मंथ पास, महीनों बीत गए, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब, हॉन्चेस का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हॉन्चेस का मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, आलती पालती मार के बैठना, चौकड़ी मार के बैठना। मंथ पास, महीनों बीत गए। शुक्ला पास सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, शुक्ला अपने हॉन्चेस पर, अपने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, कलकत्ता में अपॉइंटेड स्पॉट पर
उस दिए गए स्थान पर जहाँ पर महात्मा गांधी ने आने के लिए कहा था, वहीं बैठा रहा शुक्ला। When गांधी arrived, जब गांधी आए वहाँ पर, he waited till Gandhi was free, और राजकुमार शुक्ला ने तब तक इंतजार किया जब तक महात्मा गांधी फ्री नहीं हो गए अपने काम से। Then the two of them boarded a train, उसके बाद दोनों ने ट्रेन पकड़ी। उसके बाद राजकुमार शुक्ला ने और महात्मा गांधी दोनों ने क्या पकड़ी बेटा? ट्रेन पकड़ी। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, बिहार में पटना शहर की ओर जाने के लिए, बिहार में पटना शहर की ओर जाने के लिए दोनों ने ट्रेन पकड़ी। इसके बाद देयर शुक्ला led him to the house of a lawyer, जहाँ पर शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया। पटना में राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को ले गया एक लॉयर के घर पे, एक वकील के घर पर, नेम राजेंद्र प्रसाद, और नाम था उनका राजेंद्र प्रसाद। सुना होगा नाम आपने राजेंद्र प्रसाद का, और नाम था उनका राजेंद्र प्रसाद। वो later became president of the Congress Party and of India, जो बाद में जो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के भी अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति बने। उनके घर ले गया राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को सबसे पहले। He was a lawyer. At the time he was a lawyer who later became the president of Congress and the president of India. And the president of India, राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए शुक्ला जी महात्मा गांधी को। राजेंद्र प्रसाद was out of town. राजेंद्र प्रसाद जो कस्बे से बाहर गए हुए थे, किसी काम से बाहर थे, वहां पर नहीं थे। But the servants knew Shukla as a poor yeoman. लेकिन किसान जो है शुक्ला को जानते थे एज अ प्योर योमैन, एज अ पुअर योमैन। पुअर का मतलब गरीब, और योमैन यहाँ पे फार्मर है, पीजन है, एक गरीब किसान के रूप में शुक्ला को जानते थे उसके नौकर। किनके नौकर? राजेंद्र प्रसाद के नौकर, जो उस समय लॉयर थे, उस समय वकील थे। उनके नौकर, राजेंद्र प्रसाद के नौकर जो है शुक्ला को जानते थे, राजकुमार शुक्ला को जानते थे। एक गरीब किसान है, एक पुअर योमैन है, एक गरीब किसान है। Was a servant who pestered their master to help indigo sharecroppers, जो उनके मास्टर को, वो pestered their master to help the indigo sharecroppers, जो उनके मालिक को, उनके मास्टर को, राजेंद्र प्रसाद को पेस्टेड, परेशान किया करता था इंडिगो, नील की खेती करने वाले शेयरक्रॉपर्स, बटाईदार किसानों की सहायता करने के लिए। वो जानते थे कि गरीब किसान है, पुअर योमैन है, जो हमारे मालिक को, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को जो है परेशान करता था बटाईदार किसानों की सहायता करने के लिए, नील की खेती करने वाले शेयरक्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए परेशान करता। मतलब उन्हें मालूम था ये कई बार यहाँ पे आ चुका है, आज भी आया है, ये कई बार यहाँ पे आ चुका है, आज भी आया है। उन्हें मालूम था वो पेस्टर देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। परिणाम स्वरूप उन नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, परिणाम स्वरूप राजकुमार शुक्ला को नौकरों ने जमीन पर बैठे रहने दिया। पता ही आता यहाँ परेशान करने के लिए हमारे मालिक को, हमारे ऑनर को, तो उसे ज़मीन पर वहाँ बैठे रहने दिया। उसे अंदर नहीं परमिशन दी कहीं आंगन में बैठने की, वहीं बैठा रहे, वहीं पर बैठने दिया। स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ। एंड हु वाज द कंपेनियन? द कंपेनियन वाज महात्मा गांधी, द ग्रेट महात्मा गांधी। ओके, तो अपने साथी के साथ उसे वहीं पर बैठे रहने दिया। गांधी, महात्मा गांधी, whom they took to be the another person, जिसको उन्होंने दूसरा किसान समझ लिया था। राजेंद्र प्रसाद जी के नौकरों ने उन महात्मा गांधी जी को भी, जो उनके साथी के रूप में वहां पर आए थे प्रसाद जी से मिलने के लिए, महात्मा गांधी को उन्होंने उनका कंपेनियन, साथी समझ लिया था, दूसरा किसान समझ लिया था, समझा कि ये भी किसान है। और महात्मा गांधी कोई हैंडसम पर्सनैलिटी वाले नहीं थे, एक फिजिकल, एक डील डोल वाले व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही एक दुबले पतले आदमी थे, लाइक अ फार्म, वो भी गरीब भी, एक ऐसा इनका पर्सनैलिटी था, मतलब कोई समझेगा कि शायद इनके साथी थे। उन्हें लगा कि ये भी किसान होगा, तो बैठा रहे, तो भी प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे चलें। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड। इसके बाद गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जिसको उन्होंने दूसरा किसान समझ लिया था, another peasant, but गांधी was not permitted to draw water from the well। लेकिन गांधी जी को वेल से, कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी। महात्मा गांधी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी। Let some drops from his bucket pollute the entire source, कि कहीं उनकी बाल्टी से कुछ बूंदे जो है संपूर्ण स्रोत को जो है प्रदूषित ना कर दें, कि महात्मा गांधी का हाथ लग जाए
और हाथ लगने से जो पानी की बूंदें गिरे उस कुएं में, कहीं पूरा कुआं का कुआं जो है प्रदूषित ना हो जाए। ओके, दैट टाइम एक्चुअली द सोशल इविल इज नोन एज अनटचेबिलिटी। छुआछूत की बीमारी उस समय बहुत ही फेमस थी। ओके, प्रिवेल्ड है आज भी कई गाँवों के अंदर, उस समय कुछ ज़्यादा ही थी, उस समय कुछ ज़्यादा ही थी। सो कहीं उनकी बाल्टी, उनकी बकेट कुछ बूंदे पूरे स्रोत को गंदा ना कर दे, ऐसा लगा उन्हें, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी पानी भरने के कुएं से। जो कुआं प्रसाद जी के घर पे था, परमिशन नहीं दी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? हाउ डिड दे नो? उन्हें कैसे पता था कि दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, कि वह अनटचेबल नहीं थे? वह अनटचेबल नहीं थे, वे अछूत नहीं थे। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको छुआ जा सकता था, वो व्यक्ति थे वो वाले। ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको छू नहीं सकते थे, छूने से प्रॉब्लम हो जाती थी, वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उन्हें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। ओके, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, और गांधी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने सबसे पहले, महात्मा गांधी ने सोचा कि चलो पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट कंडीशंस, हालातों के बारे में। तो शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, तो शुक्ला उन्हें देने में, इम्पार्ट का मतलब देने में, प्रोवाइड करवाने में कैपेबल था। मतलब जो इन्फॉर्मेशन शुक्ला उन्हें दे पाता, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए महात्मा गांधी कहाँ जाने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी ने जो है मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। ओके, मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने। इसके बाद विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, और महात्मा गांधी ने जो है मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, चंपारण के रूट में, चंपारण के मार्ग रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा पूरी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट कंडीशंस, हालातों के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग वह इन्फॉर्मेशन, जो शुक्ला उन्हें देने में, इम्पार्टिंग करने में कैपेबल था। मतलब उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वह मुजफ्फरपुर गए, निर्णय लिया। ही अकॉर्डिंगली सेंड अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और उसके साथ ही महात्मा गांधी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम, एक तार, एक संदेश भेज दिया। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जब मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में क्या थे? प्रोफेसर थे। उनको तार भेजा, टेलीग्राम संदेश भेजा। वोम ही हैज सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको महात्मा गांधी ने जो है टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और जो ट्रेन जो है मध्य रात्रि में पहुंच गई थी। 15 अप्रैल 1917 का समय था। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लास्ट बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और कृपलानी जो है विद्यार्थियों की लास्ट बॉडी के साथ, विद्यार्थियों की भारी भीड़ के साथ स्टेशन पर महात्मा गांधी का वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी स्टेड देयर, और गांधी वहाँ पर रुके 2 दिनों के लिए, और महात्मा गांधी वहाँ पर 2 days 2 दिनों के लिए वहाँ पर रुके। कहाँ पर? इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर पर। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, सरकारी विद्यालय में एक अध्यापक थे। ओके, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, और इन दिनों बड़ी असाधारण सी बात हुआ करती थी। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होना उन दिनों क्या थी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी, एक असाधारण सी बात थी। गवर्नमेंट जॉब लगना उस समय 1917 की बात है। उस समय बेसिकली हैविंग जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कूल में काम करना असाधारण सी बात थी। आज तो टीचर्स प्राइवेट हो गए हैं, मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर्स बहुत हो गए हैं। उस समय गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही पढ़ाई हुआ करती थी। ओके, और एक टीचर होना, एक अध्यापक होना उस समय बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। मार्ट साहब, हर जगह पूरे गांव में मार्ट साहब आ गए मार्ट साहब आ गए, गुरुजी आ गए। आज गुरुजी कहाँ रहे? आज तो टीचर हो गए हैं। ओके, लेट्स से इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों बड़ी असाधारण सी बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की, गांधी ने कुछ बताया, कहा कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को, एक सरकारी प्रोफेसर को, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को शरण देना, एक सरकारी प्रोफेसर को मेरे जैसे आदमी को शरण देना इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे इस लोकेलिटीज में, छोटे छोटे क्षेत्रों में। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, जहाँ पर
जहां पर आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। गांधी ने कमेंट किया, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे आदमी को हार्बर का शरण देना इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे क्षेत्रों मतलब ऐसे ये शरण देने वाली बात ही बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अध्यापकों थी, लेकिन शरण देने वाली बात भी क्या थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इस स्मॉलर लोकेलिटीज में द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, भारतीय जो है अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति जो है दर्शाने के लिए काफ़ी भयभीत थे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, स्वराज के समर्थकों के लिए, और महात्मा गांधी स्वराज के समर्थक थे, होम रूल के एडवोकेट थे, समर्थक थे। और स्वराज के समर्थकों के लिए सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना उन दिनों जो है बड़ी एक बड़ी भयभीत करने वाली बात थी। ओके, इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय काफ़ी भयभीत होते थे, बड़ा डरा करते थे स्वराज प्राप्त करने वाले, स्वराज को लाने वाले, खुद के राज को लाने वाले समर्थकों की सहायता करने के लिए, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर्स ऑफ हिज मिशन, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, और गांधी के जो एडवेंट का जो न्यूज़ था, महात्मा गांधी के जो आगमन की जो खबर थी, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का, उनके लक्ष्य का जो नेचर था, उनकी प्रकृति थी, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, चंपारण में और मुजफ्फर में बहुत तेजी से फैल गई। महात्मा गांधी के एडवेंट की और उनके मिशन की जो न्यूज़ थी वो चंपारण में, मुजफ्फरपुर में जो बहुत तेजी से फैल गई थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन टू अराइविंग ऑन फुट, और चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, क्रॉप को शेयर करने वाले थे, और चंपारण के जो बटाईदार किसान थे, बिगन फ्रॉम चंपारण, चंपारण से उन्होंने आना शुरू किया। अराइविंग ऑन फुट, कैसे, पैदल आना शुरू किया। और चंपारण के शेयर क्रॉपर्स ने, बटाईदार किसानों ने जो है पैदल आना शुरू किया, एंड बाय कन्वेंस के माध्यम से आना शुरू किया टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने हीरो से मिलने के लिए, कि कोई तो आया है हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर, चले देखते हैं हमारे चैंपियन को, हमारे चैंपियन कैसा दिखता है। अपने चैंपियन से मिलने के लिए, अपने हीरो से मिलने के लिए पैदल चल पड़े चंपारण के लोग, महात्मा गांधी से मिलने के लिए कन्वेंस से चल पड़े, साथ में चल पड़े। ओके, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए, उन्हें सारांश देने के लिए, उन्हें ब्रीफ देने के लिए, उन्हें सारांश देने के लिए। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए, उन्हें सारांश देने के लिए। और सारांश का मतलब कि यहाँ पे क्या मामला चल रहा है, यहाँ पे जो इंजस्टिस है लैंडलॉर्ड सिस्टम का, शेयर क्रॉपिंग का जो इंजस्टिस है, यहाँ पर 15% जो एरिज्म जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स है, उस सबका ब्रीफ देने के लिए, उस सबका सारांश देने के लिए महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए मुजफ्फरपुर के सारे लॉयर्स। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट, वे लगातार जो है कोर्ट में, न्यायालयों में किसानों के जो केसों का जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइड्स ऑफ देयर फी, दे टोल्ड हिम अबाउट द केसेस, और मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने महात्मा गांधी को उनके केस के बारे में बताया, अपने केस जो वो लड़ रहे हैं किसानों के लिए, उन केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और ये बताया कितना फ़ी, कितना पैसा उनसे वो लेते हैं। सारांश देने के दौरान ये बताया कि केस वगैरह क्या चल रहा है यहाँ पे, और कितना फीस जो है लिया जा रहा है उनसे, ये तक बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, और महात्मा गांधी ने लॉयर्स को चाइड किया, लॉयर्स को फटकारा, लॉयर्स को डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से ज़्यादा पैसा लेने के लिए महात्मा गांधी ने जो उन्हें डांटा, फटकारा, चाइड किया। ही सेड, कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा, निष्कर्ष पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानून सम्मत न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मैंने अपशॉट निकाला है कि हमें लॉ कोर्ट्स में, हमें कानून सम्मत न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए ऐसे वहाँ पर जहाँ से जस्टिस नहीं मिलता, जहाँ से न्याय नहीं मिलता। I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts, taking such cases to the courts, courts में इस तरह के केस ले जाना, कोर्ट्स में इस तरह के केस ले जाना does little good, थोड़ा फ़ायदा मिलता है,
वहाँ पे तारीखें मिलती है, डेट्स मिलती है, पैसा खर्च होता है, जस्टिस नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता। वे द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ पर किसानों को जो है क्रस्ट किया जाता है, लॉ कोर्ट से मत जाइए आप, वहाँ पर किसानों को जो है क्रस्ट किया जाता है, कुचला जाता है। एंड फियर स्ट्रिकन, और वहाँ पर किसान जो है काफ़ी भयभीत रहते हैं, किसान काफ़ी वहाँ पे भयभीत रहते हैं, फियर स्ट्रिकन होते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, लॉ कोर्ट्स यूजलेस हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, लॉ कोर्ट्स यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, द रियल रिलीफ इज फॉर दैम इज टू फ्री फ्रॉम फेयर, और जो उनके लिए, किसानों के लिए रियल रिलीफ है, वास्तविक सांत्वना है, वास्तविक आराम है, वह है फ्री फ्रॉम फेयर, भय से मुक्ति, डर से मुक्ति। कोई काम गलत है तो नहीं करना, तो नहीं करना, दैट्स इट, बोल दिया। कुछ गलत तो गलत ही है भाई, रॉन्ग तो रॉन्ग ही है, ब्लैक तो ब्लैक, वाइट है वाइट है। इफ़ यू आर रैशनल इनफ, अगर आप समझदार हैं तो यू विल नॉट से दैट वाइट इज़ ब्लैक, यू विल नॉट से दैट ब्लैक इज़ वाइट, रॉन्ग तो रॉन्ग है, राइट तो राइट है। ओके, द रियल रिलीफ फॉर दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, और उनके लिए जो रियल रिलीफ है, जो वास्तविक सांत्वना है, आराम है, वो है भय से मुक्ति, डर से आज़ादी, वो डर से आज़ाद हो, भय से मुक्त हो। सबसे बड़ी बात उनके लिए है। लॉ कोर्ट्स तो यूजलेस है, कानून संबंधी न्यायालय तो बेकार की बातें हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, विल हैव द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।